Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is CA finalist Neha Tiwari and इस वीडियो में I'm going to share all about the Big Four, my experience in one of the Big Four that is Deloitte, उसका stipend, why one should go to Big Four and why one should not, then उसका perks, the drawbacks and everything in this video, so do watch till end. I am going to share the major heads, that is the domains which are available to us, that is for CA articleship. तो तीन मेजर हेड पहले आती है अपनी ऑडिट एंड इंश्योरेंस, देन सेकेंड कम्स द टैक्सेशन एंड द थर्ड कम्स द एडवाइजरी सर्विसेज. अब इसमें भी आते हैं हमारे सब डोमेन्स, जैसे कि ऑडिट एंड इंश्योरेंस में आपका आ गया इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट. एक्सटर्नल ऑडिट इज basically the statutory audit and then comes your forensic audit as well. फिर taxation में you have direct tax and indirect tax, and under advisory services all the consultation related services which includes the valuation say related services, then mergers, acquisition, then one new domain which has been introduced is basically a forensic accounting. तो यहाँ क्या होती है, ये basically फैंसी नेम है गाइस. सेम वही ऑडिट होती है, सेम थोड़ा सा अकाउंटिंग और डिटेक्टिव माइंड को थोड़ा मिश्रित किया है. अदरवाइज ये चीज़ पहले भी होती थी विदाउट द नेम फॉरेंसिक ऑडिटिंग एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग. तो ये सारी कुछ डोमेन्स हैं जो कि मैंने ऊपर से बता दी है. ये मेन डोमेन्स होती है, और भी बहुत सारी सब डोमेन्स होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है. Most asked question to me with respect to Big Four is what stipend they do provide to an CA article. So for first year कोई भी Big Four हो, EY, KPMG, Deloitte, वो आपको provide करती है 15K and for second year they do provide you 20K. अब ये नॉर्म है जो कि अभी फॉलो की जा रही है. बाद में कुछ चेंजेस हुआ तो I'll let you know in the next video. So guys, let's talk about the merits, that is the advantages that one article always get from a Big Four. Big Four में जाने के बाद you get into such organized or professional corporate culture where you just take all the professionalism from them and adapt your nature. So you sit along with AMs, that is assistant managers, the deputy managers, the partners, the directors. You talk with them, you interact with them, and especially if you are in audit field, you get chance to interact with the clients to get to know more about the client's entity. So basically all this just add up to your knowledge bucket list. So this all will help you in future wherever you go, either you join Big Four or not in future after becoming CA. आप कहीं पे भी जाओगे, आपको ये नहीं होगा कि यार मेरे को टाइम लग रहा है सीखने के लिए, ऐसा नहीं होगा. आप फटाक से अडेप्ट कर लोगे तो एक अडेप्टिव पावर आपकी बढ़ जाएगी. एंड बात करने का तरीका एंड ऑल ये सब जो भी प्रोफेशनल एटिकेट्स होती है वो सब आप Big Four में पक्का सीख जाओगे. तो ये होती है हमारी एडवांटेज. एंड सेकेंडली इस आप कोई भी एक पर्टिकुलर डोमेन में काम करोगे तो यू विल गेट मोर नॉलेज एज कम्पेयर टू अ पर्सन डूइंग आर्टिकलशिप इन अ मिड साइज और अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म वेर इन ही इज़ गेटिंग एक्सपोजर टू ओवरऑल डोमेन्स. बिकॉज वो एक ही डोमेन में काम करके हम इतना घुस जाते हैं अंदर कि हमें उसके बाद में एकदम बोलते हैं ना कि फ्रॉम टिश्यूज टू सेल्स टू यूनिट, इतनी तो थोड़ा साइंस हो गया, इतनी ज्ञान हमें आ ही जाती है. अब बात करेंगे हम डीमेरिट्स की. डीमेरिट्स आर वेरी एविडेंट, दैट इज़ विल नॉट गेट एक्सपोजर टू ऑल द डोमेन्स. यू विल, इफ यू आर इनटू एन ऑडिट फील्ड in statutory audit, you will not know what the person in internal audit does or what the person under taxation domain do. So basically you will be restricted to a particular domain, but yeah, this cannot be a restriction according to me, because आप ही देख लो, आप एक चीज़ में शहंशाह बन जाओगे, ठीक है. उसके बाद when you become CA, आप कोई भी फर्म में पीक टाइम पे जाके काम कर लो. आप वहाँ पे जाके काम करोगे तो आपको बैठा के पूजा तो नहीं करेगा, आपकी काम ही कराएगा. तो उस वक्त में यू विल एबल टू लर्न अबाउट द टैक्स फाइलिंग्स, GSTR एंड ऑल. वो सब आप फटाक से 5-6 महीने में सीख ही जाओगे. तो वो जो बोलते हैं कि ये ड्रॉबैक हो गया है Big Four का, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. हाँ, लेकिन सच्चाई बोलूँ तो Big Four में बहुत 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 ही ज़्यादा काम होता है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर एंड एज़ कम्पेयर टू मिड साइज फर्म. क्योंकि वो Big Four है यार, आपको स्टाइपेंड भी अच्छी दे रही है. वो आप एक्सपेक्ट ही मत करना कि आपको एकदम हल्के में काम मिलेगा, बिल्कुल नहीं. ऐसा मोमेंट्स होता है कि मैं घर पे 10 बजे के बाद भी आती हूँ और
10 बजे के बाद 11-12 भी बजे, लेकिन पीक टाइम्स में होता है। जैसे ही पब्लिक कंपनी का अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाना होता है, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी का बनाना होता है, फिर उसके बाद हमें LR बताना होता है, लिमिटेड रिव्यू देनी होती है। तो ये सब चीज़ों में जब मैं इन्वॉल्व होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन ये हमें बचपन से ही, मतलब बचपन ही हुआ ना, एक आर्टिकलशिप फेस होता है, वो बचपन होता है। तो आप यहाँ से ही कुछ सीख रहे हो जो कि ऐड कर रहा है, तो फ्यूचर में दिस विल गोइंग टू हेल्प। ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू अप्लाई इन बिग फोर। अब बिग फोर का क्या सीन होता है कि दे रिवर्ट यू बैक आफ्टर 5 to 6 months व्हेन यू अप्लाई, लाइक व्हेन यू सेंड योर CVs थ्रू मेल और थ्रू लिंक्डइन, थ्रू कनेक्शंस, वट एवर यू डू। तो अब इसके लिए क्या करना होता है, ये मुझे पहले कोई नहीं बताया था। लाइक हमें एक बारी हमारे एक सर ने बताया था। तो आपको मैक्सिमम जो लोग खुद से पढ़ाई करते हैं, जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स रहते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है। तो आपको क्या करनी है, एग्जाम के पहले व्हेन यू हैव एश्योरिटी दैट यू विल क्लियर बोथ द ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, देन डू अप्लाई, डू सेंड द मेल्स टू ऑल द बिग फोर्स वाया लिंक्डइन के कनेक्शंस, और गूगल से ब्राउज कर लो मेल IDs एंड उनको भेज के रखो। इसके क्या होता है कि देखिए, जो बिग फोर्स होते हैं वो इतने वेल्ले नहीं बैठे होते हैं, वो आपको 5-6 महीने बाद ही रिवर्ट करेंगे, अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ स्ट्रॉन्ग रेफरेंस। तो ऐसा है क्या कि एग्ज़ाम के बाद मैं नहीं अप्लाई कर सकता, मैं नहीं जा सकती? बिल्कुल नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ऑल इंडिया रैंकर्स को तो डायरेक्ट HR राउंड वगैरह भी नहीं होती, ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी नहीं होती है, डायरेक्ट होती है पार्टनर राउंड या डायरेक्टर राउंड। मतलब वही उनका एक बारी में ऐसे थोड़ा बहुत बात कर लेंगे, कॉन्फिडेंस देख लेंगे, वो डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद बात आई हम जैसे नॉर्मल बच्चों की, उन बच्चों की जिनको अटेम्प्ट्स आए हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? येस, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स डू नॉट मैटर, ओनली द थिंग इज़ यू आर रिक्वायर्ड टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स। कोई भी अटेम्प्ट में लेकिन क्लियर होना चाहिए। तो आपका रेफरेंस है तो वेल एंड गुड, HR तक आपकी CV पहुंच जानी चाहिए, देन आपके इंटरव्यूज़ होंगे एंड यू विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड इफ़ you are eligible as per that requirement. If you fall under the category, जो भी होगा उनका डिसाइडिंग नॉर्म्स, कैसे कैसे वो आर्टिकल सेलेक्ट करते हैं। तो यस, ये होती है कुछ तरीके जिससे आप बिग फोर्स में जा सकते हैं। गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी अपडेट्स के लिए, कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।